پیش ہے سلیم کلیان ایجوکیشنل سمیتی کے زیر اہتمام ڈاکٹر جہاں آرا سلیم کی رہائش گاہ پر ایک شام احباب ادب کے نام عنوان کے تحت ایک ادبی نشست کی رپورٹ، جس کی صدارت خانقاہ شاہ عبد الرحمن کے سجادہ صوفی سید اظہار علی نے کی اور نظامت کا فریضہ شکیل گیاوی نے انجام دیا۔ تقریب کا آغاز محمد خضر نے تلاوت کلام ربانی سے کیا۔ مہمان خصوصی سہ ماہی ادبی نشیمن کے ایڈیٹر ڈاکٹر سلیم احمد اور ابدنامہ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہارون رشید تھے۔ اس موقع پر افسانہ نگاروں میں مینا عرفان، ڈاکٹر سلیم احمد، ڈاکٹر جہاں آرا سلیم اور محسن عظیم نے آٹا ساٹا، آخری نشانی، کلو بھائی کباب والا اور اس کی چائے عنوان سے اپنے افسانے پیش کیے۔ شعراء میں ہارون رشید، شکیل گیاوی، عرفان لکھنوی، صغیر نوری، بارہ بنکوی، تاج لکھنوی، سلیم تابش، شمس الرحمان، شمس العارفین، وقار کاشف، قمر سیتا پوری اور محمد علی علوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی کسی نے نام حضور آپ کا لیا، جب بھی کسی نے نام حضور آپ کا لیا، جب بھی کسی نے نام حضور آپ کا لیا، میں نے درود پاک لبوں پر سجا لیا۔ جب بھی کسی نے نام حضور آپ کا لیا، میں نے درود پاک لبوں پر سجا لیا۔ اس عمر کا واقعہ ہے جب شادی جیسی تقریبوں میں لوگ کچھ زیادہ ہی شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ایک ایسی ہی تقریب میں شرکت کرنے ہم ایک گاؤں پہنچے تھے۔ ابھی ہم گڑ کی چائے پی کر بیٹھے ہی تھے کہ صدیق بھائی یاد ہم کے امیری کی پوری تمکنت کے ساتھ اپنے عزیز جن کے ہاں ہم پہنچے تھے وہ دوڑے دوڑے ایک طرف گئے اور ہانپتے ہوئے واپس گزرے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے میں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے، تو بولے شادی کے اسباب میں سے شکر لینے گئے تھے، صدیق بھائی کو چائے جو پلانی ہے۔ صدیق بھائی اور ہم اپنے عزیز کے برابر کے رشتہ دار ہیں، کل تھے آج بھی۔ صدیق بھائی چائے پی رہے تھے شکر کی، اور میں اور میرے والد وہاں سے چل پڑے تھے۔ والد صاحب کو میں نے ساتھ دلایا کہ اب شادی کی دورنگی تقریب میں شریک رہنا بجا نہیں، شکر والے شکر لیں، ٹھوکر والے ٹھوکر لیں۔ آج افطار کی وجہ سے گھر کے سب لوگ دیر تک سونے کے موڈ میں تھے، اگر جاگ بھی گئے تھے تو بھی بیڈ سے نہیں اٹھے تھے۔ نلنی کو سکون نہیں مل رہا تھا، وہ کمرے سے سیدھی آنگن میں آ کر بیٹھ گئی۔ آنگن میں ایک بڑا سا پرانا نیم کا پیڑ تھا جس پر بڑا سا جھولا ڈلا رہتا۔ نلنی اور اس کی بھابھی آشا ساون میں خاص کر خوب جھولا جھولتی تھیں۔ اس نیم کے پیڑ کے موٹے تنے میں ایک ہول تھا جس میں گلہری نے اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ اس وقت گلہری پیڑ کے تنے سے باہر آتی اور کبھی پیڑ کے اوپر چڑھتی تو کبھی نیچے جاتی اور پھر اپنے گھر میں چلی جاتی۔ نلنی بڑی دیر سے گلہری کا یہ کھیل دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کاش میں بھی اسی طرح اپنی مرضی سے گھر جا سکتی۔ اجازت؟ کلو بھائی کباب والا پرانے شہر لکھنؤ کی ایک شاہراہ جو وکٹوریہ اسٹریٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، کئی معنوں میں اہمیت کی حامل ہے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ کی یہ شاہراہ شیخوں کے قلعے تک جاتی ہے جو بعد میں مچھی بھون کہلایا، جس کا دائرہ امام باڑہ، آصف الدولہ اور میڈیکل کالج کے ہاسپٹل تک جاتا ہے۔ اس اسٹریٹ پر حیدر گنج سے چلتے ہوئے جب وکٹوریہ گنج چوراہے پر پہنچتے ہیں تو بائیں جانب بالدہ روڈ ہے۔
यहाँ नाले के किनारे अदबिस्तान है। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब का अदब कदा, जिनके फर्जंदों में से एक होनहार फर्जंद प्रोफेसर नैयर मसूद थे। सीमिया, ताउस, चमन की मैना, इत्र काफूर, गंजफा, समान अनीस, ताबीर गालिब जैसी मायनास तसानीफ के खालिक। इसी चौराहे से ज़रा आगे बढ़िए तो दाएं जानिब नक्खास चौराहा है। इस चौराहे से कब्ल उर्दू अदब के जाने माने अदीब शहनशाह मिर्ज़ा की रिहाइश गाह है, जहाँ उनके जीते जी आए दिन अदबी नशिस्तें हुआ करती थीं। इन नशिस्तों के रूह रवां में शहनशाह मिर्ज़ा के अलावा शाहनवाज कुरैशी, मुदीर नया दौर, सैयद काजिम अली, वक़ार नासिरी और अनीस अशफाक आबदी प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। यहाँ पर अदीब अपनी नई तख्लीक़ात पेश करते थे और उन पर गर्मा गर्म बहस होती, बक़िया उधेड़ी जाती और खूबसूरत महासिन की दाद भी दी जाती है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ें तो नक्खास चौराहे से ज़रा सी दूरी पर दाहिनी जानिब रज़ा क्लॉथ हाउस की बिल्डिंग है। इसकी ढलान पर कंघी वाली गली को रास्ता जाता है। तस्वीर के मानिंद सरापा सीधा, तस्वीर के मानिंद तस्वीर के मानिंद सरापा सीधा, क्या अक्स नजर आता है सीधा सीधा, क्या अक्स नजर आता है सीधा 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 सीधा, बरअक्स समझते हैं मुझे आईने, आईने में हो जाता है उल्टा सीधा, बरअक्स समझते हैं मुझे आईने, आईने में हो जाता है उल्टा, बहरहाल ये एक गजल है। ऐसा फरमाए कि सहरा में उबलते हुए जल देखा है, सहरा में उबलते हुए जल देखा है, उलझी हुई तकदीर का हल देखा है, और कैसे न भरोसा हो तेरी कुदरत पर, एक सूखे हुए शजर में फल देखा है, एक सूखे हुए शजर में फल देखा है। मैं बगैर कोई जवाब दिए उठा और निकट के कपड़े लगते, कांच की कुछ चूड़ियां और जेवरात की पोटली लाकर बहुओं के सामने रख दी। ये क्या पापा, ये तो अम्मी के जेवरात हैं, इसे क्यों निकाल दिया? ये तो हम लोगों के पहनने के काम आएंगे। नहीं बेटी, ये भी कोरोना के मरीज का है, इसे भी इशारे सवाब के तौर पर खरीदो। अरे पापा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा इस वक्त। पापा, ये तो अम्मी की निशानी है, ये किसी को नहीं देना है, ये निशानी हम दोनों के पास रहेंगे। और दोनों बहुएं जेवर की पोटली लेकर अपने कमरे में चली गईं। मैं निखात की कांच की चूड़ियों को देखता रहा। बहुएं निशानी लेकर जा चुकी थी, मेरे चारों तरफ उदासी उदासी थी। मैं उठा और कांच की चूड़ियों को संभाल कर, जो मेरे बीवी की आखिरी निशानी के तौर पर मेरे हिस्से में बची थी, संदूक में रखकर मुकफ्फल कर दिया। मतलब देखिएगा, अर्ज क्या है कि दुश्मनी प्यार के दर्पण में कहां से आई, दुश्मनी प्यार के दर्पण में दुश्मनी कहां से प्यार आई? के दर्पण में कहां से आई, बात दीवार की आंगन में कहां से आई, दुश्मनी प्यार के दर्पण में कहां से आई, बात दीवार की आंगन में कहां से आई, और मेरे लश्कर में है कोई तो मुनाफिक, वरना इतनी हिम्मत मेरे दुश्मन में कहां से आई। मेरे लश्कर में है कोई तो मुनाफिक, मेरे लश्कर में है कोई तो मुनाफिक, वरना इतनी हिम्मत मेरे दुश्मन में कहां से आई। किताबे शेर से हमने परी निकाली है, गजल तुम्हारे लिए एक नई निकाली है। बहुत अच्छा, मतलब क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, शेर से हमने परी निकाली है, गजल तुम्हारे लिए एक नई निकाली है, गजल तुम्हारे लिए एक नई निकाली है। सितारे मांग रहे थे, अंधेरे मांग रहे थे जिया सितारों से, अंधेरे मांग रहे थे जिया सितारों से, तो जुगनू ने भी कुछ रोशनी निकाली है। क्या कहने? जिया सितारों से जुगनू ने भी कुछ रोशनी। बहुत अच्छा। वो चूल्हे पर बनी बेसन की रोटी याद आती है, चूल्हे पर बनी बेसन की वो रोटी, चूल्हे पर बनी बेसन की रोटी याद आती है, वो कड़वे तेल में लहसुन की चटनी याद आती है। अरे वाह, चूल्हे पर बनी बेसन की रोटी याद आती है,
वो कड़वे तेल में लहसुन की चटनी याद आती है और दही को गुड़ के शरबत में मिलाना याद आता है। दही को गुड़ के शरबत में मिलाना याद आता है, कटोरे में उसे पीना पिलाना याद आता है, और मेरा गुजरा हुआ लम्हा मुझे फिर से बुलाता है। मेरा गुजरा हुआ लम्हा मुझे फिर से बुलाता है, मुझे अपना पुराना गांव अब भी याद आता है। और वक्त कटता है मेरा शौक हसीनाओं में, वक्त कटता है मेरा शौक हसीनाओं में, राज है मेरी जवानी का, माशाल्लाह 74 के राज है मेरी जवानी का, दवा है मेरी, कर अता बच्चे मुझे तीन ए रब्बुल इज्जत, तीनों की माएँ अलग हों, ये दुआ है मेरी। कतरे कतरे में जान होती है, कतरे कतरे में जान होती है, आंसुओं की ज़बान होती है, आंसुओं की ज़बान होती है, पाँव शैतान मेरे मलता है, पाँव शैतान मेरे मलता है, फज्र की जब अज़ान दानिश्वर बल्कि अदब के लिए हुक्म नाजिल हो गया अल्लाह की तरफ से। अदब की क्या अहमियत है कि जब कुछ असहाब बारगाह रसूल अकरम में हाजिर हैं और अपनी आवाज़ बुलंद की रसूल से गुफ्तगू में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, खबरदार 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 कि मेरे रसूल से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू मत करो वरना तुम्हारे सारे आमाल खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत सोचने की बात है ये कि तमाम गुनाह करने के बाद भी, हरामकारियाँ करने के बाद भी, तमाम चीज़ें छूट जाने के बाद भी हम मुजरिम हैं, हम गुनाहगार हैं। अल्लाह उन्हें माफ़ करने वाला वो गफ़ार और सत्तार है, उसने कहीं आमाल ज़ब्त करने की बात नहीं की है। लेकिन अगर बेअदबी की गई तो उसका हुक्म है कि आमाल ज़ब्त कर लिए जाएंगे। यार साबित ये होता है कि अदब की हैसियत अमल से कई गुना ज़्यादा है। क्या कहने तो अदब हमें बरतना चाहिए अपने अकाबरीन का, और बिलखुसूस जनाब रसूल अकरम का बहरहाल वो अदब है करता हूँ, क्योंकि अक्सरियत इस तरफ है कि मैं हाजिर हो जाऊँ। बहरहाल आज के इस महफिल के तमाम मौजूद शरका, डॉक्टर हारून रशीद साहब, हमारे रास्त जनाब मौलाना कमर सीतापुरी साहब, सगीर नूरी साहब, सलीम ताबिश साहब, और ये जनाब ताज लखनवी साहब, खान लखनवी साहब और मोहसिन अंसारी साहब,